وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فالوڈ بائی پنجاب. تو اس چیز کو سمجھنے اور کس طرح حکومت پنجاب کس طرح وہ قیمت کو سپورٹ کیے ہوئے ہے جہاں پہ کہ نسبتاً سستا آٹا مل رہا ہے، وہ کہ اس میں حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے، لیکن سندھ حکومت بالخصوص جو ہے تو ایک ہمارے لیے ایک ایسا سچویشن اس نے کریٹ کر دی ہے جس سے کہ نہ صرف سندھ کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، مہنگا آٹا خرید رہے ہیں وہ، اور وہ اس گندم کو ریلیز نہیں کر رہے جو کہ ان کو ریلیز کرنی چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پہ آئیڈیل تو یہی ہوگا کہ صوبوں میں کم فرق ہو کہ سمگلنگ یا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر گندم کی ترسیل کو روکا جائے کہ ہر صوبہ اپنی جو اس کی جو ایک سٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ پوری ہو سکے. تو اس سلسلے میں فخر امام صاحب جو کہ فوڈ سیکیورٹی منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے. جی مسٹر صاحب. آپ کا جناب بہت بہت شکریہ آنریبل شبلی فراز صاحب کا. میرے ساتھ سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں جی عمر صاحب. آپ سے آج کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو خوراک ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گندم کا آٹا، اور پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے گندم کی جو ہم پیداوار پروڈکشن ہے ہماری. اس سال 25.5 ملین ٹن تھی، جس میں سے 19.4 ملین ٹن پنجاب کی تھی، تقریباً 4 ملین ٹن سندھ کی، کے پی کی 1.25 ملین ٹن اور بلوچستان کی 1 ملین ٹن، جو کہ پبلک سیکٹر نے اس دفعہ خریداری کی، پروکیورمنٹ کی، وہ تقریباً 6.6 ملین ٹن یعنی کہ 66 لاکھ ٹن. پنجاب نے 40 لاکھ ٹن کی، سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن کی اور 12 لاکھ ٹن پاسکو نے کی، 1 لاکھ ٹن بلوچستان نے کی. یہ بن جاتا ہے 66 لاکھ ٹن ٹوٹل ہمارا جو ہماری پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ تھی. پچھلے سال 40 لاکھ ٹن کی تھی، اس سے تقریباً 26 لاکھ ٹن اس دفعہ زیادہ کی. اس لیے کیونکہ ہمیشہ حکومتوں کے پاس اور خاص طور ہمارے جیسے ملک کے پاس ایک اسٹریٹجک ریزرو ہونا چاہیے. جب اس دفعہ ہمارا فصل آیا اپریل میں تو ہمارے پاس ریزرو میں صرف 5 سے 6 لاکھ ٹن گندم تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک بحران پیدا ہو گیا تھا دسمبر سے جنوری تک. تو اس لیے اس مرتبہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 27 ملین ٹن تھا، ہم 1.5 ملین ٹن ٹارگٹ سے کم رہے، یعنی کہ 1 مہینے سے بھی کم کی جو ہمیں ضرورت ہے، جس میں ہمارے سیڈ بھی ہے، اسٹریٹجک ریزرو بھی، سب ملا کر. تو شروع سے ہی جب 1400 روپے فی 40 کے جی کے اوپر پروکیورمنٹ کی گئی کاشتکار سے، شروع میں کاشتکار کو کہا گیا کہ 1360 روپے پہ خریداری کریں گے، پھر بعد میں فروری میں 1400 روپے پہ کر کے، جس کے تحت 66 لاکھ ٹن خریداری کی گئی. اس کے باوجود کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک نیا فنامنا میں دیکھتا ہوں کہ کارٹلائزیشن ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، اور چند افراد ذخیرہ اندوزی یا ہو سکتا ہے شروع میں، اب تو کہتے ہیں کہ بالکل کم ہو گئی یا نہ ہونے کے برابر، سمگلنگ. یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ ایک آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کریں. نیا فصل آیا، 1400 روپے خریداری ہوئی اور ایک دم 1800 1900 کی جگہ 2000 روپے من فوری طور پر بک رہی تھی. اب جو ہم نے اس کے اوپر بہت سی میٹنگز کی ہیں صوبوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ٹریڈیشنلی ہوتا تھا کہ اکتوبر میں گندم کی جو ریلیز ہوتی تھی وہ فلاور ملز کو دی جاتی تھی، اس مرتبہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ سٹاک پڑا ہے. کس لیے پڑا سٹاک؟ کہ عام آدمی کو، عام شہری کو پاکستان میں گندم جو ہے وہ سستے داموں پہ یا نارمیٹیو 1400 روپے پلس انسیڈنٹل جو کہ 150 روپے تقریباً بنتا ہے پنجاب کا، وہ دی جائے.
पंजाब ने फैसला ये किया उसकी काबीना ने कि 1475 पे हम रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने अब तक तकरीबन 4 लाख टन रिलीज़ कर चुके हैं, यानी कि 1600 से 18,000 टन डेली वो रिलीज़ कर रहे हैं। हुकूमत सिंध उन्होंने क्या किया, और ये एक्चुअली वाइटल इशू है आज मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने 3.9 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट उनकी प्रोडक्शन हुई, और 1.25 मिलियन टन उन्होंने गंदम पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योर की। पिछले साल उन्होंने 1 टन भी प्रोक्योर नहीं की थी। तो उनके पास इस दफ़ा जो ज़ख़ीरा है पिछले साल से निस्बतन बहुत ज़्यादा है, और उनको फौरी तौर पर, क्योंकि वहाँ तो कीमत 2,000 रुपए तक चली गई है, तो उनको चाहिए था कि स्टेबल करे। हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान की हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का? वो एक ही मौक़िफ़ है कि आम आदमी को, आम शहरी को, जिसका 30 से 40% डिपेंडेंस है फूड इनटेक का गंदम के आटे पे, कि वो कम किया जाए रेट। एक ही तरीका है कि आप फ्लड कर दें मार्केट को आटे के साथ। अब है तो सही गंदम, चंद अफराद ने उसको, हमारा असेसमेंट है कि शायद उसने कॉर्नर किया, जिसको हम कार्टलाइजेशन कहते हैं, और देखना यह है अब ये सूबों के ऊपर है कि वो कार्टलाइजेशन को पिन पॉइंट करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर दूसरी जिम्मेदारी जो उससे ज़्यादा है वो ये है कि जैसे पंजाब ने रिलीज़ किया 1475 पे, सिंध को चाहिए था। 2 ख़त हमने लिखे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने हुकूमत सिंध को हाईएस्ट लेवल पे, कैबिनेट ने, ECC ने कई मरतबा उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है उसको रिलीज़ करें, और ये जो आटे की कीमत है, गंदम की कीमत है, वो आम आदमी को हम उसको ये गंदम जो है सही कीमत पे मुहैया कर सकें। वो नहीं हो रहा, और उसकी ज़िम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पे आयद होती है। क्यों होती है? उसने ये फैसला करना है। गंदम तो उसने देनी है जैसे पंजाब दे रहा है, पर वो चाहता है कि ये इस किस्म का बहरान क्यों वो चाहते हैं, मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। होना ये चाहिए था कि पंजाब ने 3-4 हफ्तों से ये फैसला कर दिया, सिंध को भी फौरी तौर पर ये फैसला करना चाहिए था। गंदम उसके पास है, जो भी उसका इंसिडेंटल बनता है, 100 रुपये पंजाब तो सब्सिडी दे रहा है, उसके अखराजात 75 रुपये से ज़्यादा है, उसके बावजूद वो 1475 रुपये दे रहा है, खुद सब्सिडाइज कर रहा है अपने शहरी को। और इसीलिए पंजाब में जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि 840 रुपये जो उन्होंने फ़िक्स की थी कीमत 20 किलो आटे की बैग की, वो बेशतर औकात मिल रहा है। कुछ जगह पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा कीमत में बिक रही है। 860 जी, 860 जी। अब देखना यह है कि हमने सिंध भी ये अगर इस तरह कर दे और वो टारगेट करे कि हमने इतनी देर में इतने टन अपने फ्लोर मिल्स को रिलीज़ करना है, तो यकीनन मेरा अपना एस्टिमेट है, और ये इकोनॉमिक्स का कानून है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कीमत रैशनल हो जाएगी, रैशनलाइज हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा जो फैसला हुकूमत ने किया, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि फौरी तौर पर इंपोर्ट की जाए। डेफिसिट तो सिर्फ 15 लाख टन का, पर हमने ओपन कर दिया, और प्राइवेट इंपोर्टर को भी फुल इजाज़त दे दिया है, और पब्लिक सेक्टर भी इंपोर्ट करेगा। उसके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने दूसरे ममालिक को, रशिया की रिपब्लिक को हमने लिख दिया कि हमें आपसे गंदम चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। 4 और ममालिक को भी हमने साथ कहा है। तो हमने हर एवेन्यू जो है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक गंदम की कीमत आम शख्स को, आम शहरी को नहीं मिलेगी, तो ये पाकिस्तान की तमाम तर जो हमारे लोग हैं, हमारी जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, सबका नुकसान होगा। इसीलिए हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ये हम बात हुकूमत सिंध को बावर कर सकें कि ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके शहरी इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं 1400 से, और उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बन रही है क्योंकि वो जानते हुए कि अगर उस चीज़ को वो रिलीज़ करेंगे तो यकीनन कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। और ये मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं कर रहे। और अब मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को उनको आपके ज़रिए, आज पब्लिक के ज़रिए
सिंध हुकूमत को एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फौरी तौर पर जो है कीमत जो है रिलीज़ करे और उससे आम शहरी का बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया जी। सर आप तो सिंध लोग ही जानते होंगे वहाँ कीमत कितनी है, मैं आपको इधर की बता दूँ जो मैं खुद मार्केट। एक तो वो जो 860 वाला है ना, तो मेरी ख्वाहिश है आप बैठ के इधर खाएँ, मिनिस्टर साहब खाएँ, प्राइम मिनिस्टर खाएँ। जी सर 20 किलो का जो वो आटा आ रहा है 860 का, एक तो अवेलेबल काम है, जहाँ अवेलेबल है वो खाने के काम नहीं है। जो नॉर्मल आटा है पंजाब में, जो रावलपिंडी में आप चेक करा लें मार्केट में, 70 रुपये किलो आटा है, नॉर्मल आटा है प्योर मिल का, और चक्की का आटा 75 रुपये से 80 रुपये किलो है। आप सिर्फ की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पंजाब में रिलीज हो रहा है, तो ये प्राइस जो 2 साल पहले जो बाजी की हुकूमतों में जाते हैं 30 रुपये किलो आटा था 2 साल, आज 70 से 80 रुपये लोग ले रहे हैं, पंजाब में ले रहे हैं, पिंडी और इस्लामाबाद में। इसकी वजह क्या है, चीनी की कीमत भी 100 रुपये किलो पहुँच चुकी है, तो इसके बारे में भी कोई ये 2 चीज़ें प्लीज़ बता दें। जी जी सर देखें कि पंजाब में तारीखी तौर पर अक्सर तौर पर अक्टूबर में हमेशा गंदम रिलीज होती है, तो इस मरतबा पहले आपको करनी पड़ी है, मार्केट को करने के, तो ये जो कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उनको रोकने के बजाय आप अपनी पॉलिसियाँ रिवाइज़ कर रहे हैं, उनको बेहतर कर रहे हैं। तो गंदम के मसले में भी हमने ये देखा है, चीनी के मसले में भी हम देखा है, आप सिर्फ क्या फेडरल गवर्नमेंट की यही काम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें बताएं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और बस वो जो मार्केट में पैसे कमाने वाले लोग हैं वो अपनी मर्जी से पैसे कमा लें और हम सिर्फ चीखें ही सुनते रहें। और सिंध हुकूमत ने कोई, क्योंकि ACC का फैसला भी है, कैबिनेट का फैसला भी है कि गंदम रिलीज करें, तो सिंध हुकूमत ने कोई तो रीज़न दिया होगा ना कि गंदम क्यों नहीं रिलीज कर रहे। जी जी, आपके ये 2 सवाल जो हैं जायज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने ये बात की 70 रुपये, तो मैंने नहीं सुना कि फ़ी किलो, उसका मतलब तो 28, 1 मिनट जी, 28, 1 मिनट बाद जवाब सुन लेना जी। 2800 आज भी हमने जो सर्वे कराया था, जो हमें इतला है, मुझे नहीं पता क्योंकि हम तो मार्केट में खुद नहीं गए, पर जो हमें इतला थी पंजाब के सूबे की, बेशतर औकात वो जैसे मैंने कहा 860 जो आपने बात की, 860 से उससे कुछ ज़्यादा भी मुख्तलिफ इलाकों में आ रही थी। पर जो आप फिगर बता रहे हैं ये तो बिल्कुल ही कहीं भी मैंने उस किस्म का फिगर नहीं देखा ना सुना है। माज़रत से आपकी अपनी जगह होगी एक बात, वो ठीक है। ये कहना कि जी पिछले अदवार में यकीनन उस वक्त थोड़ा सा वर्ल्ड जो था ना वीट उसकी बिल्कुल और थी। हमारे यहाँ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पाकिस्तान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है एज पॉलिसी पिछले 10 साल में सिर्फ गंदम की। आपको पता होगा बाकी नोशनल प्राइसेस हैं, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। और ये इसलिए है स्ट्रेटिजिकली क्योंकि गंदम हमारा एक स्ट्रेटिजिक क्रॉप है और है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारे जो मसला होता है आम आदमी का, जैसे हमने कहा, मेरे साथी ने भी कहा, फराज साहब ने, कि गंदम 30 से 40% ज़रूरत है डेली हमें अपनी डाइट की। अब वो जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें ये जो 860 है वो इंसान खा भी नहीं सकता, शायद ये कहीं कहीं ऐसा मसला हो, पर अक्रॉस द बोर्ड मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ कि इसमें किस हद तक जो आपने बात की है वो सही है या नहीं। आपने जो बात की कि जी सिंध गवर्नमेंट ने और पकड़ नहीं रहा ज़ख़ीरा अंदोज़ को, किसने पकड़ना है? रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी वफाक की भी शामिल हो सकती है कि उनको इन्फॉर्मेशन दें। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फ़खर इमाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।